बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय का रूस के पुश्किन स्टेट रशियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू हुआ। इसी के तहत रूस से 2 भाषा राजदूत पोलिना डेरोजकीना और अन्ना लिस्टोवा विश्वविद्यालय पहुंची। 16 से 18 दिसंबर तक दोनों राजदूत ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के रूसी भाषा विभाग, हिंदी विभाग के साथ लंगट सिंह कॉलेज, रामदयालु सिंह कॉलेज, राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में रूसी भाषा का प्रचार प्रसार किया। कार्यशाला में छात्रों को रशियन भाषा का अभ्यास भी कराया गया। साथ ही रूसी भाषा की पढ़ाई से आगे की संभावनाओं की भी जानकारी दी गई। उन्होंने बिहार की संस्कृति की सराहना की। उन्होंने वैशाली के गौरवशाली धरोहर को भी देखा। गुरुवार को ये दिल्ली और वहां से रशिया के लिए रवाना होंगी। हमारी मौजूदगी इस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के रशियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में है। हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ रसिया से 2 इन्वेस्टर्स आए हैं जो रशियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आए हैं, और क्या कुछ उद्देश्य है इनको जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इंग्लिश में उनसे बातचीत करेंगे, और फिर यहाँ रशियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से 2 असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिव्यम प्रकाश और डॉक्टर सुषमा मैम हैं। हम प्रयास करेंगे कि उनके माध्यम से आपको हिंदी लैंग्वेज में और या इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबली तरीके से उनकी बात को समझा सके, बता सके। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। वेलकम इन इंडिया and Bihar University. Спасибо. So in Russian language that means धन्यवाद. Okay, thank you. What is the motive of you came from Russia to India? Because we want to talk about our country to tell students about opportunities, how to visit Russia, how to study in Russia, and why Russian language is so important in our nowadays world. And obviously talk about Russian culture, to make students closer to our culture, to show them and to motivate them to learn Russian language harder. How did you feel after arriving in India, and what did you think of Bihar culture? We are glad to be in India, and we feel amazing feelings about visiting India. We were in New Delhi, in Assam and Bihar, and every part of India is unique. It's interesting for us. We try Indian food. We connect with Indian people, and we feel exciting. We feel inspiring feeling. So Bihar is very important. Is very interesting for us, and we try Bihar cuisine. We was surprised, pleasant surprised of it, and today I hope we will have cultural program. Ma'am, have you tried litti chokha yesterday? Yes. How it feel or how it tastes? It tastes like a Russian meal. We call it pelmeni. Momo. Momo. It tastes like momo. Yes. Litti chokha. Yeah, a food from Bihar. We really liked it. We're crazy about litti chokha. Did you try gupchup? No, but we want You to. want to? Yes, Today we will try. We will try gupchup also. Dhanavat. Russian, if lessons start at 9 a.m., for example, students are on lesson at 9 a.m. without any later. Yes. But students both in Russia and in India are interesting, are active, and it is good. It is more important to see a fire in ice, and it's okay. In my opinion, between Russian and Indian students, the most common similarity is the fact they are so inspired. They want to work hard to take their goals,
because I see all the students, they want to talk with us, not only on our lessons. They just want to talk every time, just hear how native speakers speak, to ask, they ask us their questions. So we really appreciate the way they want to learn Russian, and we believe they will visit Russia one day and will meet Russian students and understand by themselves how much in common we have. And do you have any suggestion for improvement of higher education in India and Indian institutes also? For Any suggestion, ma'am? Any suggestion? For improvement, your suggestion. To improve this He institute. is asking that is there any opportunities of higher education in Russia or India? Opportunities for higher education in Russia, in India. Sure, there are some opportunities for Indian students to visit Russia, to study in Russia for free, because we have some governmental programs of scholarships for Indian students to visit Russia, to study in Russia for free. For example, in many universities, not only humanitarian science, but even medicine, technical science, etc. So even they can visit Russia on a World Youth Festival that take part in Russia, and see Russia, try Russian food, try Russian clothes, and fall in love in Russia. Ma'am, in these 3 days, have you learned or something new or some new Hindi words? Yes, Yes, we know. Dhanavat. Do you wanna Dhanyavad. Other Hindi words? Yaha. Yaha यहाँ आके अच्छा लगा धन्यवाद. इन्होंने क्या कुछ कहा हम जानते हैं. दिव्यम मैम और सुषमा मैम है यहाँ पे. दिव्यम सर और सुषमा मैम, हम एक बार चाहेंगे कि इन्होंने क्या कुछ कहा. आप जो हमारे दर्शक हैं उनको आप हिंदी में कम्युनिकेट कर दें 2 मिनट में बस आपका. मैम ने कहा है कि जो है ये यहाँ पे बिहार में आए हैं, इनको बहुत ही अच्छा लगा है, यहाँ के लोग अच्छे लगे हैं, यहाँ इनको बहुत ही चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी हैं. जैसे यहाँ का खाना, लिट्टी चोखा इन्होंने ट्राई किया है, ये इनको अच्छा लगा है. यहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे लगे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जो कि रूसी स्टूडेंट्स भी हार्ड वर्किंग होते हैं. एक कमी जो उन्होंने बताया है वो कि जो है रूस में क्लासेज 9 बजे स्टार्ट होती है, मतलब 9 बजे स्टार्ट होती हैं, लेकिन यहाँ क्लास अगर 9 बजे बोला जाए तो जो है 10 बजे बच्चे आते हैं. तो ये इनकी भी शिकायत है कि इस तरह से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है. साथ ही साथ आगे रूस में क्या अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में बात करी है, क्या संभावनाएं हैं, यहाँ के बच्चे कैसे वहाँ रूस में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे फ्री में वहाँ पे घूमा जा सकता है, कैसे वहाँ पे एडमिशन लिया जा सकता है, और वहाँ पर जाकर रूस में रूसी स्टूडेंट से मिलेंगे, रूसी लोगों से मिलेंगे. क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा 2 दिनों तक ये लोग यहाँ पे रहीं, विभिन्न बिहार विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों का इन्होंने निरीक्षण किया, वहाँ बच्चों से इंटरेक्शन किया, क्या कुछ रहा एक्सपीरियंस इन लोगों का? मेरा नाम सुषमा कुमारी है, मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ रूसी विभाग में बिहार यूनिवर्सिटी के. जैसा कि आप लोग को पता है कि 3 दिवसीय ये जो वर्कशॉप था, जिसमें ओपन मास्टर क्लासेस, क्विज और एक्सचेंज ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज हमने देखा. जैसा कि अभी अन्ना और पलीना जो कि हिंदी के कुछ शब्दों को इन्होंने जाना, और हम लोग बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो कि रूसी भाषा जानना चाहते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे शब्दों को सीखा, और उसके अलावा भी रशिया के बहुत विभिन्न कल्चरल वर्ड्स को सीखा है इन्होंने. और इस 3 डे वर्कशॉप में अन्ना और पलीना ने डिफरेंट कॉलेजेस जैसे RDS, LS कॉलेज, RBBM कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ रशियन में अपने ओपन मास्टर क्लासेस लिए हैं. इसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भागीदारी दिखाई, और हमारे जो भी प्रोफेसर्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं कॉलेजेस के, उन्होंने भी बहुत ही उत्साह के साथ इसमें भाग लिया. और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह रही कि रूस और भारत
उनके बीच जो सांस्कृतिक संबंध है ये मजबूत होने जा रहा है। और अगर सबसे अहम बात बताया जाए तो पुष्किन स्टेट यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी के बीच जो MOU साइन हुआ है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, चर्चा का विषय है। और आगे बिहार यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों को, न कि बस रूसी विभाग के विद्यार्थियों को, बल्कि जो भी रूसी पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ आके एडमिशन ले सकते हैं और आगे ये लोग अपना भविष्य रसिया में या इंडिया में रहते हुए रूसी भाषा में कैसे भविष्य बनाया जा सकता है, इस पे काम कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करूँगी अन्ना और पलीना का और दिव्यन सर का और हमारे वाइस चांसलर सर का, जिन्होंने बहुत ही बहुत समय दिया अपना इस MOU को साइन कराने में और रूसी विभाग को बहुत ही सहयोग दिया। धन्यवाद बहुत बहुत अंकित जी। मैम, यहाँ जो कोर्स संचालित हो रहे हैं अभी कौन कौन से कोर्स हैं, कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? बहुत शॉर्ट में आप एक संक्षिप्त जानकारी जी अंकित जी, यहाँ पे हमारे पास अभी 4 कोर्सेज चल रहे हैं। एक है सर्टिफिकेट इन रशियन, जो कि पार्ट टाइम कोर्स है। यह इवनिंग क्लासेस में होती हैं। अक्सर इनकी क्लासेस 3 से 5 रखी गई है और इसमें वैसे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने जो कि जॉब भी कर रहे हैं, वो भी आके पढ़ाई कर सकते हैं रूसी भाषा का, और जो फुल टाइम कहीं पे कोर्स कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आके इनरोलमेंट ले सकते हैं और रूसी भाषा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं इसमें। दूसरा कोर्स है PG डिप्लोमा का, जो कि फुल टाइम कोर्स है। ये 2 साल का होता है और ये इनकी क्लासेस अक्सर 11 से लेके 2 बजे तक होती है और यह सप्ताह में हर दिन होता है, रविवार को छोड़कर। रसिया की एक संस्था के साथ हमने MOU किया है और रसिया के एक दूसरे विश्वविद्यालय के साथ हम 1-2 दिन के अंदर ही MOU साइन करने जा रहे हैं। रसिया से हमारा बहुत प्रगाढ़ रिश्ता रहा है, उस समय से जब रसिया सोवियत संघ का हिस्सा रहा करता था और रसिया ने और भारत ने जब भी ये देश संकट में पड़े हैं एक दूसरे की बड़ी मदद किया है। तो हम लोग अपने छात्रों को रसियन लैंग्वेज सिखाने के लिए प्रोत्साहित करें, हमारे बच्चे रसिया जाएं और रसिया के बच्चे हमारे यहाँ आवें, इसीलिए हम लोगों ने MOU किया है। और उसी MOU के तहत रसिया के 2 प्रतिनिधि हमारे यहाँ आए हैं जो विभिन्न कॉलेजों में जा रहे हैं और लोगों को रसियन लैंग्वेज के प्रति माने प्रोत्साहित कर रहे हैं। इनके साथ रहीं, क्या कुछ सीखने को मिला और क्या संभावनाएं देखते हैं रूसी भाषा की पढ़ाई में आप? हम लोग को यही सीखने को मिला कि मतलब हम लोग यहाँ से मतलब कहीं बाहर जाके भी कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइक, और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं तो हम लोग को बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और उनका बात भी मतलब समझ पा रहे हैं हम लोग को। सर इतना मतलब पढ़ाए रशियन, तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा था। और कैसा अनुभव रहा 3 दिनों का ये वर्कशॉप रहा? ये वर्कशॉप जैसे कि इंडिया का रिलेशन रसिया के साथ पहले से भी है, जब से बांग्लादेश बना है तब से है, उस वक्त से फ्रेंडशिप चला रहा है और ये फ्रेंडशिप एक्सटेंड होते जा रहा है और उस फ्रेंडशिप को आज हम लोग देख रहे हैं हमारे सर और मैम की वजह से। इन्होंने ही हमें रशियन कल्चर से इंट्रोडक्शन करवाया, ये अच्छा लगा हम लोग को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।